Hello and welcome to my channel Counseling and Healing. You may not realize it, but you send out silent, non-verbal signals to people every day. ये सब क्या है? This is your body language. And this body language reveals आपकी true feeling, how you are truly feeling when you are not saying a single word. This body language can be your hand movements, your eyes, your facial expression, your way of sitting. So we'll discuss something about this today. अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारी बॉडी रिवील कर रही है. So better be careful. Be it professional life or in your relationships, be it with your friends get together or if you are new to a family like a female, a daughter-in-law, a son-in-law, so in a class, everywhere. So negative body language के बारे में आज हम बात करेंगे. So what is the body language जो दूसरे को एक आपका अच्छी फीलिंग नहीं देगा. Okay, and that is either a conscious or unconscious expression. किस चीज़ के बारे में? Your sadness, anger, nervous तो नहीं है आप, या you are impatient, boredom, आप बोर हो रहे हैं अगले की बात से, या lack of confidence. We can tell a lot about how a person is feeling through their body language. तो है ना मज़ेदार ये टॉपिक? तो आप भी ध्यान रखें, कभी भी किसी के साथ आप बात कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं तो how you should sit and respond. Posture can convey a wealth of information. सबसे ज़्यादा आप किस तरीके से बैठे हैं वो बता देगा कि how you are feeling. As well as hints about personality characteristic. आप उस टाइम कैसे फील कर रहे हैं ओके फाइन, बट आपकी पर्सनालिटी क्या है that too can be revealed by your sitting posture. Okay, so whether a person is confident, open or submissive, it has been suggested that body language may account for between 60 to 65% of all communication. So कितना ज़्यादा पार्ट आप बिना बोले रिवील कर रहे हैं. सो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दोज हु हैव सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच. So if you are a good human being, you shouldn't hurt anyone, and especially किसी की feelings and emotions को hurt कभी ना करें. So if you are unconsciously doing like this, आपकी जो body language है किसी को आप unintentionally hurt कर रहे हैं, so work on that. Think for a moment about how much a person is able to convey with just a facial expression. खाली आपका मुंह बनाना आपका बहुत सारा पार्ट रिवील करेगा. हाउ? अ स्माइल कैन इंडिकेट अप्रूवल और हैप्पीनेस. अगर आप स्माइल दे रहे हैं इट मीन्स यू आर हैप्पी या आप किसी की बात को अग्री कर रहे हैं. लेकिन अ फ्राउन कैन सिग्नल एग्जैक्टली ऑपोजिट. इट इज डिसअप्रूवल और अनहैप्पीनेस. सो टेक केयर ऑफ दैट. इन सम केसेस आवर फेशियल एक्सप्रेशन में रिवील आवर ट्रू फीलिंग्स about a particular situation. While you say that you are feeling fine, आप कई बार बोलते हैं मैं ठीक हूँ, but the look on your face आपका सारा जो सच्चाई है वो बयां कर देगा. तो expression on a person face can help determine if we trust or believe what the individual is saying. So और ये एक स्टडी भी की गई है, the study about the trustworthy facial expressions. उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट इट इन्वॉल्व्स, एक थोड़ा सा टिप आपको बता रही हूँ कि इट इन्वॉल्व्स स्लाइट रेज ऑफ द आईब्रोज. आईब्रोज को थोड़ा सा रेज करके एंड स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस. इट सजेस्ट दैट यू आर फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंट. नाउ फेशियल एक्सप्रेशंस आर सो यूजफुल और इतने एक्सप्रेसिव हैं, ये हम सब जानते हैं जो भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं. हैव यू सीन इमोटिकॉन्स? कैसे वो फेशियल एक्सप्रेशन आपकी बात को एनहांस कर सकते हैं. एंड यू यूज़ इट, एवरी वन यूजेज इट. सो माइंड इट, जस्ट नॉट अ व्हाट्सएप इमोज, बट योर फेस ऑल्सो रिवील्स एवरीथिंग. सो बी केयरफुल. अब बात करते हैं आईज की.
The eyes are referred to as windows to the soul. कई बार आपने देखा होगा किसी से आप बात करते हैं तो उनकी आंखें बोलती हैं. And some are very expressionless. So those who are good listeners, their eyes will be in contact with the speaker. आप उसको देख रहे होंगे जो बात कर रहा है, as if you are listening to each and every word. आप attention pay कर रहे हैं, and this is the sign of giving respect. आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप उसकी तरफ देखेंगे अगर वो आपसे कोई बात कर रहा है. एंड इफ यू आर नॉट लिसनिंग, आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं है, दैट मीन्स यू आर अनकंफर्टेबल, यू आर डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर ट्राइंग टू कंसील योर रियल फीलिंग्स. सिंपल. इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. डेली रूटीन में हमने देखा होगा व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर चाइल्ड कि अगर उसने कुछ गलती की है, व्हाट डज योर चाइल्ड डू? अगर उसने गलती की है तो आपको आई कॉन्टैक्ट वो कभी नहीं देगा. एंड देयर यू कम टू नो दैट योर चाइल्ड हैज़ done something wrong. So this is because he is not confident, he is not honest, और आपसे वो बात छुपा रहा है, तो cannot give eye contact. Now comes blinking of the eyes. Yes, ये तो eye का expression था, but sometimes blink of the eyes भी आपकी change हो जाती है. People often blink more rapidly जब वो distressed होते हैं, uncomfortable हैं. And now comes the main thing, how you sit, your posture. Crossed arms indicate that a person feels defensive, self-protective, या आप नहीं सुन रहे किसी की बात. Clasping the hands behind the back, पीछे की तरफ अगर आपने हाथ बांधे हुए हैं, indicates that a person is feeling bored, या वो angry है अगर उसने अपने हाथ को टाइट पकड़ा हुआ है. Rapidly tapping, कई बार आपने देखा होगा फिंगर्स को या लेग्स को कोई टैप करता रहता है, शेक करता है. दैट इज द साइन ऑफ इम्पेशेंट पर्सन. आइदर ही इज गेटिंग बोर्ड, या फ्रस्ट्रेशन है, या कोई हाइपर है वो उसका नेचर. देन क्रॉस लेग्स व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स और एनीवन. आप अगर क्रॉस लेग करके बैठे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू नीड प्राइवेसी. सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को भी बहुत ध्यान देनी है व्हेन दे आर सिटिंग, या प्रोफेशनल लाइफ में भी व्हेन यू आर सिटिंग विद योर सीनियर्स, आपको पोस्चर का बहुत ध्यान देना है. सिटिंग अप स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल में इंडिकेट दैट अ पर्सन इज फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन. आइदर क्लास में हो या कहीं आप प्रोफेशनल अपने ऑफिस में हैं. अंडरस्टैंडिंग द बॉडी लैंग्वेज कैन गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स हेल्पिंग यू इन बेटर कम्युनिकेशन. While it may be tempting to pick up signals one by one, it's important to look at these non-verbal signals in relation to verbal communication. आप कुछ बोले उससे पहले आपकी बॉडी क्या बता रही है, work on that. So बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरे को क्या कन्वे करती है. Some people seem to come up by these skills naturally, उसके पास ये नेचुरल होता है. And if not, anyone can improve their non-verbal skills with practice. So work on this. आपको जो बताया है, if this is a bad body language और आपके अंदर ये है, so what should be your next step? Improve it. So with this, my video comes to an end and hope you like it and hope you have learned something. अपनी एडवांटेज के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करें. बेटर बॉडी लैंग्वेज and better personality. Be a perfect human being. This is my ultimate motto. So take care. We'll be back soon with another such video. Bye bye.